another video और आपका आज वीडियो। स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो एक नया टॉक शो स्टार्ट हुआ है प्राइम अमेजॉन पर, और जिन गेस्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं, आई थिंक मैं अगर अपनी बात करूं, मैं पहली दफा इन दोनों को इकट्ठे किसी ऐसे शो में देख रही हूं। नहीं अंबानी की शादी में मैंने देखा था। मैंने कहा है कि किसी टॉक शो पे, अच्छा टॉक शो में, हाँ। शादी की बात नहीं थी। टाइटल है सलमान खान एंड आमिर खान क्वेश्चन द गर्ल्स टू मच विद काजल एंड ट्विंकल। काजोल एंड ट्विंकल। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल के स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा, मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आप लोग के लिए। जब हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे, कुछ आपने बोला कि हम आपसे इंस्पायर होते हैं, या हम वी लिव वाइकेरियसली थ्रू यू बिकॉज यू हैड नंबर ऑफ वाइव्स। You sound like a sheikh. ये सवाल पूछते थक गया। नहीं, सवाल अभी आने वाला है। Why do you want to live vicariously through me? अरे भाई, we are just looking at it. We're looking, it's window shopping. नहीं, ठीक आंसर दो। कैसे ये थॉट कैसे आया माइंड में? I will tell you. हमारा जो हो गया है ना, it's become पुराना माल. So we're living through you and looking at नया माल. We are admiring your whole array. Yeah, versatility. Okay, your turn. Your turn. ये जोड़ी कैसे बनी? I was doing a chat show, and that channel shut down. I interviewed her, and I think someone saw us and said we have good chemistry. And 5 years later, we both are here on this couch. So I guess that's how it happened. Good, Rab ne bana I'm di glad. jodi, basically. I'm glad this turned out. Rab ne, devil ne bana di jodi, but yeah. Prime ne bana di jodi. With you two on the show, na, the energy level will be good. Actually, we realized that we have many things in common. Yes. Surprisingly. Like what? Everything. We actually say the दोनों same बदतमीज हो। things. बदतमीज है। और क्या? कहाँ पे बदतमीज? Where are we through this show? We listen, there are many things. We are independent. We are quite decent. We are good mothers. We are working And both of women. you want to live vicariously through me. Yeah. That is why. That is our greatness. We are not going and doing it. We're just living through you. See? Sure, thank God nobody wants to live my life. No. Okay, but in real life, both of y'all have been on platforms, very emotional. Y'all have let people see your softer side. You know how vulnerable both of y'all are. How did that change come about? मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ. I आप cry रोते very हो? easily. I have always been someone who cries easily. Yeah. But you also have become a Yeah, I lot do more cry emotional easily. and open. Like I laugh, I cry. Just if you're talking about happy moments, उसमें थोड़ा सा एक वो खुशी के आंसू आते हैं, हाँ। लेकिन अगर ऐसा कोई ऐसे what you've gone through and all that stuff, उसमें कभी नहीं आता. That is your business, that is your thing, you need to fight that you cannot put out there. But if you're talking about, say for example, a co-star that's helped you, a friend that's helped you at a time when you didn't have anything, so those moments, just that The good stuff. reminiscence, just makes you feel good about it. That shit, I've known these guys 30-40 years now. Have you ever cried in public? Made people cry in public. I've made people रुलाया cry. रुलाया लोगों को. I've made people cry. No, I think my defense mechanism kicks in. I would rather people think I'm a bitch than a bichari. It doesn't work for me. Have you cried? I've got tears in my eyes once or twice, but I'm very comfortable crying. I don't feel it shows. It's not a sign of weakness for me. No, I think it's a great thing. It is a it's so sign of strange that we are strength. sitting here. That the guys don't have an issue with Crying. We both are like, no, हमको नहीं दिखाना है. No, but I think with you guys being open about your emotions and crying, you're opening the door for so many men out there who perhaps were scared to express themselves. Yes. If they see their heroes doing it, it automatically enables them. So I think that's But I mean, fabulous. cry for the right reason. Why cry for no rhyme or No, reason? not for no rhyme or reason. But in the sense बचपन से बोलते हैं ना, boys shouldn't cry, हाँ, बच्चों boys को रोना shouldn't नहीं cry. चाहिए, हाँ. And now they see grown लड़का है, men रोना मत. crying. But crying for like. Again, he's playing that same game where he'll just disagree. No, Baba, crying Now for he's like just disagreeing brother, for no rhyme or sister, mother, father, family. But going and crying for a girlfriend that's left you and all, then that is थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है वो crying. Now at this age, who's Yeah. crying for a girlfriend who's left you? No, this is only talking about the younger सही बात generation. है. So move on, next. 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 Okay, चलो. Next. Swipe.
फॉलो आमिर। That's it. तुम लोग को आज एक पंचिंग बैग मिल गया। मैंने क्या बोला, ये बोल रहा है दे सब। धनाधन, दे धनाधन। Him. Him, you blame नहीं him. नहीं, आप लोग are being बड़े very- दूध के दिले हो, वाह वाह वाह। सब दूध में धुले हुए हैं। मजा आया ना, अच्छा, ऐसे वैसे- लग रहा है पर्सनली हो रहा है। ये वो सब है पुराने क्लासमेट्स जो है ना वो आपस में रीयूनियन करते हैं, तो पुराने दिनों की जो है ना वो याद दिलाते हैं एक दूसरे को और हंसते हैं और एक दूसरे को ना पुरानी बातें होती है एक दूसरे को वो मुंह भी कर देते हैं। ये वो वाला आपको जो है ना हाँ, वो नजर तो आ रहा बड़ा था। दूध का धुला हुआ है। हाँ। वाली बात मुझे ये लास्ट वाली तो बहुत ही फनी लगी और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना आमिर खान को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ना थोड़ा टारगेट किया जा रहा है कि हर बात उन्हीं पर आ रही है। बट आई थिंक मुझे ऑनेस्टली जो ट्विंकल खन्ना जी की एक बात है वो मुझे अच्छी लगी है कि बहुत सारे लोगों को लाइफ में बेचारा बनना आता है थ्रू आंसू, तो वो एक अलग सिचुएशन है। बट मैं इस तरह से मैं नहीं कहती कि आप अपने इमोशंस जो है वो इतना ज़्यादा सप्रेस कर दो कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाए, चाहे वो एक लड़का है या एक लड़की है। आपको लगता है कि आपको रोना आ रहा है तो आपको रोना चाहिए। रोने में कोई वीकनेस नहीं है, रोने में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आप रो नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते भाई? जैसे खुशी एक इमोशन है, रोना भी एक इमोशन है और बिल्कुल ऐसे ही है। आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ठीक है आप लाइफ में स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छी बात है, कंपोज हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे नहीं लगता कि लाइफ में आंसुओं का स्ट्रांग होने से कोई लेना देना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो स्ट्रांग बनने के चक्कर में ना उनके चेहरे के जो आप कह लो कि सारे इमोशंस उड़ जाते हैं, उनका चेहरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं हकीकत है उसके अंदर ऊपर। इमोशंस बेसिकली Emotions, आपके हाँ। जो है ना वो कोई नहीं रहते, इस वजह से जो है ना वो सारी आपकी चीजें लाजमी पता है एक टाइम आता है आपके फेस पे वो चीजें जो है वो आना जो शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई लड़कों को खासतौर पर आज के टाइम पे ना मेरा ख्याल है पेरेंट्स को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बजाय इसके कि लड़कों को आप स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्करों में उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दें, आपको ना एज ए फादर एज ए मदर जो है आपको समझना चाहिए कि भाई उनके अंदर भी इमोशंस हैं, दिल है, उनको भी जो है वो आपके अल्फाज वो चुभ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि होना चाहिए आज के टाइम में इस टॉपिक पे भी ना बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि खैर वो बीच में टॉक्सिक पेरेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एलिमेंट होता है कि वो बच्चों को जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं ना वो ये चीज़ उनके अंदर फिट करते हैं कि तुम नहीं रो सकते। लेकिन आई थिंक मुझे वैसे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहती हूँ कि बल्कि इनफेक्ट आपको अगले बंदे को इतना कंफर्ट जोन देना चाहिए कि अगला बंदा एक्सप्रेस कर सके, आपको वो स्पेस मेंटेन करनी चाहिए। अब यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं कि गर्लफ्रेंड को लेकर हो, गर्लफ्रेंड के अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉयफ्रेंड के अलावा भी, और आपकी एक एज होती है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली, और उसके आगे से उस फेज से जब आप निकल आते हो ना उस सर्कल से, तो लाइफ में और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जिनको आपको फेस करना होता है। सो आई थिंक जो हालात होते हैं वो आपको बहुत स्ट्रांग बना देते हैं और वो डिसाइड करवा देते हैं आपसे कि आपको कैसा इंसान बनना है। आपको एक बेचारा इंसान बनना है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। भाई विक्टिम कार्ड अगर बनना है ना तो अगले बंदे ने आपके लिए लाखों एफर्ट भी किए हो ना फिर भी आप विक्टिम बन जाते हैं, और अगर आपने नहीं बनना ना तो अगला बंदा आपके साथ जो मर्जी करता रहे फिर भी आप नहीं बनते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप बेचारे बन जाओ या फिर आप अपने आप को डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जो है वो आगे लेकर जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली जब आप मैंने सोसाइटी की ये प्रॉब्लम देखी है कि आप डिग्निटी के साथ जब रास्ता इख्तियार करते हो और आगे बढ़ते हो, मूव ऑन करते हो, तो भाई आपको बहुत गलत समझा जाता है, आपके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ जो है वो बना दी जाती हैं। बट अगर आप बेचारे वाला रास्ता चूज़ करते हो, विक्टिम कार्ड वाला, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है आपको। सो डिपेंड्स कि आपने आपके दिल का सुकून किस में है, क्योंकि मुझे लगता है दोनों लोग जो होते हैं ना वो समझते तो नहीं है, वो दोनों अपनी अपनी जगह पर जो है वो अपने आप को सही मानते हैं। यहाँ पे मुझे कहावत याद आ गई जो आपकी बात है कि भाई जिंदगी में अगर आपने अपने लिए जीना सीखना शुरू किया है ना तो सबसे पहले जो है ना सारे आपके खिलाफ हो जाते हैं। एग्जैक्टली, सो इट्स योर चॉइस कि आपको क्या करना, और आपकी चॉइस खुद की होनी चाहिए लाइफ में। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। मुझे तो बहुत ही एंटरटेनिंग लगा जिस तरीके से बात हो रही थी, और मुझे लगता है कि जब 4-5 लोग बैठे हों, हाँ अग्रीमेंट मतलब आप जरूरी नहीं कि हर चीज से अग्री करो, आपके डिसएग्रीमेंट होने चाहिए, उस डिस्कशन
डिस्कशन में डिसएग्रीमेंट्स होने चाहिए, डिफरेंट लोगों को सुनना चाहिए और उस ओपिनियन को समझना भी चाहिए, रादर देन कि आप उससे इख्तलाफ ऑफेंड हो जाए, करें ऑफेंड हो जाए, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है इख्तलाफ करें और वो जो है ऑब्जेक्शन यानी कि ये ऑफेंस होने का जो है वजह बने। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।